Good morning, dear students. We are doing the chapter triangles, and today we will do Pythagoras theorem and its converse. But before that, there is a theorem which will help us to prove Pythagoras theorem. And this, at the same time, this theorem is very important to prove many of the results. So here is the theorem 6.7. Its statement is, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both the sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. So here is the figure. We have a right triangle. You have to make the figure like this. So this is right triangle ABC and it is right angled at B. So let us take a perpendicular from vertex B to the hypotenuse. Then we will get two new triangles ADB and BDC. So the theorem says if we will draw a perpendicular from the point where the right angle is there to the hypotenuse, then two new triangles are formed, and these new triangles are similar to each other, and as well these two triangles are similar to the whole triangle ABC. This is the theorem. So what we have given, first we will write that. So it is given in triangle ABC, angle B equal to 90 degree and BD is perpendicular to AC. Now what is to prove? We have to prove that triangle ADB is similar to that triangle BDC, and these are similar to triangle ABC. These three triangles are similar to each other. So for its proof is also very important. So first let us take triangle ABD and the whole triangle ABC. So in triangle ADB and triangle ABC. So what is the first thing in these two triangles? This is small triangle and the whole triangle. So we can see here angle A is common. Angle A is common in both the triangles. And what is the second thing you can see here? This angle ADB of the first triangle is equal to angle ABC of the big triangle. Why? Both 90 degree. So triangle ADB is similar to triangle ABC by double A similarity. So let us check the correspondence. Have we written right or not? And point A is corresponding to point A. Angle A is corresponding to angle A. First. Okay, it's fine. Here angle D is 90 degree in this triangle, small triangle. It is in second place, and angle B on the big triangle is 90 degree. So it is fine. And the third thing remaining is C. So it is correct. Now take another set of triangles. Triangle BDC and triangle ABC. So what is the first thing in this small triangle BDC and the whole triangle? Angle C is common. So angle C is equal to angle C, common. And what can be the second thing? Just tell. Yes, angle BDC and angle ABC, both 90 degree. So we can say triangle BDC is similar to triangle ABC. It is also by double A similarity. So see the correspondence. Point C is corresponding to point C. Angle C is equal to angle C. It is our third place. It's fine.
angle D is 90 degree in this small triangle and angle B on the bigger triangle. So angle D is in between and angle B is in between. So remaining part is A. So A we have written here. So you can see what we have proved. This triangle similar to this and this triangle also similar to triangle ABC. Means these both triangles are similar to triangle ABC. So what we can conclude? We can conclude triangle ADB is similar to triangle ABC and at the same time they are similar to triangle BDC. So this is the result. Okay, so इसको याद रखने का तरीका ये है, आप इसको याद भी रखिए क्योंकि वहाँ पे फिर नहीं तो बहुत हौच-पौच हो जाता है एग्जाम्स में. तो इसका रिलेशन ऐसे याद रखना कि ट्रायंगल का नाम बोलते समय यू विल स्टार्ट फ्रॉम ए. दिस इज पॉइंट ए. सो एंगल ए डी बी 90 डिग्री से गुजरना है. इस एंड से शुरू करना है, 90 डिग्री से गुजरना है. सो ए डी बी, बी पे एंड किया तो इस ट्रायंगल का नाम लिखते समय बी से ही स्टार्ट करेंगे और पास करेंगे एंगल डी से 90 डिग्री से, क्योंकि डी से क्योंकि यहाँ पे 90 है. सो ट्रायंगल बी डी सी, ए डी बी, बी डी सी. ओके, एंड वी नो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन है, तो ऑब्वियसली ए बी सी का नाम लिखते समय ए पहले आएगा और इन दोनों में सी कॉमन है तो सी लास्ट में है तो सी लास्ट में आएगा और बी पे 90 है ही, तो इसलिए हमने जिसमें भी 90 बने हैं एंगल्स उन पॉइंट्स को हमेशा बीच में लिया है. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं. सो दिस इज द थ्योरम, आप इसे नोट कर लीजिए. सो आफ्टर दिस वी विल डू पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये कई बार आ चुकी हैं बोर्ड्स में प्रूफ करने के लिए एंड इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो important. So let us do now Pythagoras theorem. अभी जो थ्योरम हमने की वो इसमें हेल्प करेगी हमारी. So थ्योरम 6.8 which is Pythagoras theorem. Obviously Pythagoras ने ही दी थी Pythagoras theorem. So what is the statement of this theorem? You know, बचपन से पढ़ते आए हो. In a right triangle, अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, then the square of hypotenuse is always equal to the sum of the squares of the other two sides sides. तो how to prove this? In a right triangle the square of the hypotenuse, तो वही वाला फिगर बनाएंगे पिछली बार वाला, that is better. Triangle ABC, it is given to us which is right angled at B. So what is given? First of all we will write that. We will write in triangle ABC angle B is 90 degree. Okay, and what is to prove? Square of the hypotenuse. Hypotenuse is the longest side which is in front of the 90 degree angle. So AC square equal to AB square plus BC square. We have to do some construction. Construction में वही करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं B से AC पर, वही वाला फिगर पाने के लिए. ओके, सो ड्रॉ BD perpendicular to AC. Okay, so now start the proof. So वही बात है कि we know
ट्रायंगल ए डी बी, वही थ्योरम का यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि या तो आपको दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल पूरे के सिमिलर है और ये ट्रायंगल पूरे के सिमिलर हैं, तो वो तीनों सिमिलर हैं, या फिर आप याद कर लीजिए रिजल्ट को। तो मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ से स्टार्ट करना है। सो ए डी बी, सो ए डी बी इज सिमिलर टू द होल ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले तो हमने ये वाला रिजल्ट ले लिया। सो इस रिजल्ट से हम ये बोल सकते हैं व्हाट वी नीड ए सी। क्या हमें ए सी मिल पा रहा है यहाँ से? ए सी तो नहीं मिल पा रहा। ए बी, ओके, ए बी इज फाइन। सो ए बी, वी वांट ए बी फर्स्ट थर्ड, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है? ए सी। अब आपको पता है यू नीड ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तभी आ सकता है जब इधर भी ए बी बने, ओके। लेकिन फिर ये ए बी कौन से ट्रायंगल के लिए होगा? जब हमने ये ए बी लिखा था तो ये था पहले वाले ट्रायंगल के लिए, ऊपर वाली चीज़ें पहले वाले ट्रायंगल के लिए आती हैं। सो ए बी, लेकिन अब की बार जब हम लिख रहे हैं तो ये नीचे है दिस साइड, तो ये होगा सेकंड ट्रायंगल के लिए, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड पे यहाँ क्या है? ए डी। सो यू विल राइट ए डी हियर। ऐसा क्यों किया? बिकॉज वी नीड ए बी स्क्वायर, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर बनेगा। सो इट इज बाय CPST property. Now you just cross multiply, you will get AB square equal to AC into AD. This is equation number 1. Now take another set of triangle, ये वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल आई टोल्ड यू कि जब यहाँ पे ख़त्म करते हैं ADB तो इस वाले का नाम यहाँ से शुरू करेंगे और हमेशा 90 से ही पास होना है, याद रखिए। BDC, सो ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। C के करस्पॉन्डिंग C, B के करस्पॉन्डिंग D, और लास्ट में A आ जाएगा फर्स्ट में। इट्स फाइन, ठीक है, ये भी हम जानते हैं। तो सिंस दिस, सो नाउ यू नीड BC। सो BC हमें मिल सकता है, यस। BC इज ऑन फर्स्ट थर्ड, सो फर्स्ट थर्ड पे यहाँ AC है। यू नीड BC स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली BC, बट दिस BC इज फॉर सेकेंड ट्रायंगल, सेकेंड थर्ड। तो सेकेंड थर्ड पे यहाँ क्या है? CD। सो बाय CPST property, because two triangles are similar. Now you will just cross multiply, you will get this BC square equal to AC into CD. So this is the second equation. So now very easy thing, just add these two equations, add equation 1 and equation 2. So you will get left to left. So what you will get? AB square plus BC square equal to, now write ACAD, ACAD plus ACCD for second equation. So now what you can take as common on the right side? You can take AC as common. So take AC as common. So within the bracket you will left with AD plus CD. So AC into AD plus CD will give you, just refer to the figure, AD plus CD will give you AC. So you will write an extra AC. So AC into AC will be AC square. So this is the result. Now you can write, yes, AB square plus BC square equal to AC square. So this is the proof of the theorem. Okay. So you can note down this. I think it's very easy. Okay. So after it we will do the converse of Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem has just the opposite statement. So theorem 6.9. Theorem 6.9 it is converse of
Pythagoras theorem. Okay, fine. So what is the statement this time? It is in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side, then the angle opposite to first side is a right angle. Okay, so it's fine. So dear students, यहाँ हमें उसने राइट ट्रायंगल नहीं बोला है, उसने सिंपल ट्रायंगल बोला है. तो अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है. ओके, यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है. सो दिस इज द फिगर. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लिया इसका नाम ABC है. सो वी कैन राइट इट गिवन इन ट्रायंगल ABC. वी डोंट नो कि ये राइट ट्रायंगल होगा, बट इसमें क्या है, एक साइड का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड होगी या कोई भी एक साइड जो ऑब्वियसली वो बड़ी ही होगी, उसका स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के इक्वल है. जो वहाँ पर हमारा रिजल्ट था वो यहाँ पर गिवन है. अगर ऐसा होता है तो वो ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, राइट ट्रायंगल. ये एंगल 90 हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है. अभी हम नहीं जानते कि एंगल 90 है या नहीं है. सो व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव एंगल B to be 90 डिग्री. सो वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन. तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. हम एक ट्रायंगल और लेते हैं इसी के जैसा. हमने एक ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना तो हमारे हाथ में है, हम कैसा भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो हमने ये ट्रायंगल लिया, इसमें हमने इसकी PQ साइड को इसकी AB साइड के बराबर बनाया और QR साइड को BC साइड के बराबर बनाया. ठीक है, ये तो हमारे हाथ में है द कंस्ट्रक्शन टू डू. और इसका ये एंगल 90 ले लिया. सो टेक अ ट्रायंगल या ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट. तो वो ट्रायंगल हमें कैसा लेना है, सच दैट. उसमें क्या खास बात होगी कि PQ इक्वल टू, कि उसकी साइड PQ किसके इक्वल हो जाए, AB साइड के इक्वल हो जाए. PQ इज इक्वल टू AB साइड एंड BC QR इक्वल टू BC. QR इक्वल टू BC. ऑल्सो हमने एक चीज़ और ली है कि उसका एंगल Q 90 डिग्री का होगा. ओके, ये सब हमने मान लिया. ओके, फाइन. तो अब इसके बाद इसका प्रूफ कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल PQR अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. आप ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो. पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ राइट ट्रायंगल. सो व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस दैट इज PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, but one result is given to us
this, so we can use this AC square equal to AB square plus BC square. It is given to us, but at the same time students, you know, हमने माना हुआ है PQ इक्वल टू AB, तो क्या मैं यहाँ पर AB की जगह PQ लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर, ये तो AC है, AB की जगह PQ लिख सकता हूँ बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड PQ टू बी इक्वल टू AB। ऐसे ही QR इज इक्वल टू BC, तो मैं BC की जगह QR रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। सिंस PQ इक्वल टू AB एंड what else, PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC and QR equal to BC. Okay, so now this is equation number 2. So now you can just compare both of these equation. Compare equation 1 and equation 2. तो अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे, their right sides are equal, तो obviously their left side will be also equal. So AC square equal to PR square. Square can be cancelled by square, so it will be AC equal to PR. ओके, सो इस ट्राइंगल में दो साइड्स तो पहले से हमने इक्वल मानी हुई है, तीसरी साइड भी इक्वल दिखा दी हमने AC और PR। सो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, व्हाट डू यू नो? AB इक्वल टू BC, AB equal to PQ, BC equal to QR and AC equal to PR. So क्या ये ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल होंगे या नहीं होंगे? यहाँ पे कर रहा हूँ उसके बाद। So triangle ABC is congruent to triangle PQR. Which congruency is this? By triple S कॉन्ग्रेंसी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी। सो नाउ वी कैन से एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। Q के करस्पॉन्डिंग B है ना, Q के करस्पॉन्डिंग B है, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बट एंगल Q तो 90 डिग्री हमने माना हुआ है ना। सो एंगल B भी 90 हो गया बाय CP/CT प्रॉपर्टी। So what we have proved, angle B to be 90 degree. Okay, so this was the result. So I think, I hope आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। इसमें हमें बोला था इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा हो रहा है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, तो उसका ये एंगल, एक एंगल 90 हो जाता है और वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो जाता है। सो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया एक ट्राइंगल PQR। दिस वाज गिवन बट दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। हमने इस ट्राइंगल को इस तरह से बनाया है कि इसकी PQ साइड AB साइड के बराबर हो और इसकी QR साइड इसकी BC साइड के बराबर हो, और साथ ही साथ इसका ये एंगल 90 हो। ये हमने अपनी तरफ से माना है। सो क्योंकि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, सो वी कैन अप्लाई PGT हियर। सो पाइथागोरस से ये रिजल्ट आया, बट ये रिजल्ट हमें गिवन है। ओके, सो लेकिन एट द सेम टाइम AB तो PQ के इक्वल हमने माना हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेयर। ओके, सो AB की जगह PQ रख लिया और BC की जगह QR। सो व्हेन वी विल कंपेयर, तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC इक्वल टू PR। इसका मतलब दो साइड तो पहले से इक्वल थी, तीसरी साइड भी इक्वल हो गई। सो इसका मतलब ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हैं बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि एंगल Q 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा। This is the final result. Okay, so I think now you get it.
So it is sufficient for today. Thank you so much for today.